Praise the Lord and welcome once again. Praise the Lord और एक बार फिर से आप सबों का इस सभा में स्वागत है। Good to be back again with you all. आप सबों के साथ इस रीति से वापस आना आनंद की बात है। Thank the Lord for every good thing He has done for us. प्रभु का हम धन्यवाद देते हर एक भलाइयों के लिए जो उसने हमारे प्रति किया है। Count your blessings. कहता है अपनी आशीषों को गिनो, Name them one by one. एक एक कर नाम बनाम, Surprise you what the Lord has done. और हमें आश्चर्य होगा कि परमेश्वर ने कितनी भलाई हमारे संग किया है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Shall we start with that chorus? क्यों ना उस कोरस से गाकर हम शुरू करेंगे। Love is the flag on the banner of my heart. झंडा है प्रेम का मेरे दिल में लहराता। Love is the flag on the castle of my heart, on the castle of my heart, on the castle of my heart. Love is the flag on the castle of my heart, and the King is in residence here. Let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Let it fly in the sky, let the whole world know that the King is in residence here. God is the flag on the castle of my heart, on the castle of my heart, on the castle of my heart. Love is the flag on the castle of my heart, and the King is in residence here. Let it fly in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Let it fly in the sky, let the whole world know that the King is in residence here. Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। This is also in Hindi. ये गीत हिंदी में भी है। So shall we sing it in Hindi now? हिंदी में अभी से गाएंगे। झंडा है प्रेम का। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है, उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा है प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है, उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। उसे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। Hallelujah. प्रभु मुझको एक साज बना, साज स्तुति का। मैं अपने हाथों को उठाता, प्रभु मुझको एक साज बना, साज स्तुति का। मैं अपने हाथों को उठाता, प्रभु मुझको एक गीत बना, एक गीत स्तुति का। मैं अपने हाथों को उठाता,
instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make me a love song for Jesus. I lift up my hands in your name. Lord, make me a love song for Jesus. I lift up my hands in your name. Lift up your holy hands, worship me one more time. life, Lord, be glorified, be glorified in my
life, Lord, be glorified today. And Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. We praise Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you. We love you, Sing it again. Lord, we want to say, प्रभु हम कहना चाहते हैं we love you. कि बिना तेरे We want to say, we love you, Lord. प्रभु हम आज सुबह तुझसे ये कहना चाहते हैं कि हम तुझसे प्रेम करते हैं। Even though sometimes our love has been weak and frail, यद्यपि कई बार हमारा प्रेम कमजोर और दुर्बल होता है, yet, Lord, we know this, तो भी प्रभु इस बात को हम जानते हैं that you loved us first. कि तूने हमसे पहले प्यार किया है। Give us grace to love you more. हमें और अनुग्रह दे दे कि हम तुझसे और बढ़कर प्रेम कर सकें। Yes, Master. हाँ स्वामी, This is our prayer this morning. यही हमारी आज सुबह तुझसे प्रार्थना है। Draw us and we will come nearer to you. हमें अपने करीब ले आ, हम तेरे और पास आ जाएंगे। Fold us to your bosom. हमें अपने सीने से लगा ले प्रभु, Feel the throb of your heart. ताकि तेरे दिल की धड़कन हम समझ पाए। Forgive us our sins and iniquities. हमारे पापों को और हमारे अधर्मों को माफ कर दे प्रभु। Wash us in the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के खून में हमें धो दे। Make us worthy हमें इस योग्य बना दे to stand before you. कि तेरे सामने हम खड़े हो पाए। Bless your people. अपने लोगों को तू आशीष देना। Bless your word to our hearts. अपने वचन को हमारे लिए आशीषमय कर। Give us utterance to speak your word. तेरे कलाम को बोलने की शक्ति दे Give us listening ears. और हमें सुनने वाले कान दे।
bless us all. हम सबों को आशीष दे, Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते, Amen. आमेन। 1 Samuel पहला शमूएल 30th chapter 30. 30 अध्याय। It's a beautiful account, but we won't read much, but few verses. ये बहुत ही सुंदर अध्याय है, पूरा तो नहीं पढ़ेंगे किंतु कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। We are reading from verse 17 onwards 17 आयत से हम इसे आगे देख लेंगे, to verse 19. 19 आयत तक। And David smote them from the twilight even unto the evening of the next day. And there escaped not a man of them, save 400 young men, which rode upon camels and fled. इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। David recovered all that the Amalekites had carried away, and David rescued his 2 wives, and there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil nor anything that they had taken, anything they had taken to them, and David recovered all. और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उनमें से कोई भी वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। Amen. आमेन। This is one account of a very successful rescue operation with David and his men recovered all from the Amalekites. और ये एक ऐसा घटना है जहां पर दाऊद अपने दुश्मनों पर प्रबल होकर अमालेकियों से अपने सारे सामान को वापस लेकर आता है। You remember that David and his men had gone into another expedition. आपको याद होगा दाऊद और उसके साथ जो संगी थे वे लोग एक और जगह हमला करने निकले थे। They are in the land of Philistines. वे लोग इस समय फलिस्तियों के देश में छुपे हुए थे। The city name is Ziklag. और जिस शहर में वे लोग बसे थे उसका नाम था सिकलग। And the king loved David very much. और फलिस्तीनी जो राजा था वो दाऊद को पसंद करता था। So he wanted him to help him in the battle. तो वो चाहता था कि दाऊद भी उसके साथ जब वो लड़ाई करने जाए उसके साथ आए। So David and his men had gone off from Ziklag. तो दाऊद और उसके साथी लोग सिकलग नगर छोड़कर निकले थे। And they had gone to help this king. और वे फलिस्ती राजा के साथ में उसके युद्ध में मदद करने गए थे। But the Philistines didn't want them to fight with them. लेकिन कुछ फलिस्ती लोगों को ऐसा पसंद नहीं था कि दाऊद उनके संग लड़ाई में जाए। So they said to the king, we don't want this man and his men. उन्होंने राजा से शिकायत करी कि हम नहीं चाहते कि ये दाऊद नाम का ये व्यक्ति अपने साथियों के साथ हमारे संग युद्ध लड़ने जाए। So the king said, I trust you, but these men don't want you, so you return. राजा ने दाऊद को बुलाकर कहा, देख मैं तो तुझ पे भरोसा करता हूँ, परंतु मेरे ये जो लोग हैं वो नहीं चाहते तू हमारे साथ आए, इसलिए ऐसा कर तू वापस लौट के चला जा। So David and his men are returning back. दाऊद और उसके लोग वापस सिकलग नगर को लौटने लगे। And what they see is a horrible sight. सिकलग से जब बड़े दूर ही थे वहां से उन्होंने एक भयंकर दृश्य देखा। Smoke was rising. सिकलग नगर से धुआं उठ रहा था। People, the Amalekites had attacked Ziklag. इस दौरान अमालेकी लोग आकर उस पर हमला कर चुके थे और आग लगाया था। They invaded this city उन्होंने सिकलग नगर पे हमला बोल दिया था and burnt the city with fire. और जाते जाते पूरे नगर में उन्होंने आग लगा दी। Not only that, ना केवल ये किया, they took away every person from the city
as captives. उन्होंने दाऊद और उसके साथियों के जितने भी लोग वहां पत्नी बच्चे सब को बंधुआई में बांध कर ले David, गए। his wives, his children, दाऊद, उसकी पत्नियां, उसके लोग, बच्चे और सब लोग, they did not kill anybody, उन्होंने किसी को मारा तो नहीं, but they took them all away. परंतु सबको बांध के अमालेकी लोग ले गए। When David and his men arrived, जब दाऊद और उसके साथी वापस लौटकर यहाँ देखे, they saw everything gone उन्होंने अपने नगर को सूना और खाली पाया and they wept. और वे फूट फूट कर सब लोग रोने The लगे। scripture says they wept till there was no strength. वचन में लिखा है वो इतना रोए कि उनमें रोने की भी ताकत नहीं बची थी। And afterwards they thought to stone David and kill him. और उसके बाद जब वे उठे तो उन्होंने तय किया ये सब मिलकर दाऊद पर पत्थरवाह हम करें। Mind you, all are suffering the same suffering. देखिए, दाऊद और उसके सारे साथी लोग एक ही किस्म का दुख उठा रहे थे। David has also lost his people. दाऊद भी अपने लोगों को खोया था, But the anger is on David. परंतु उसके साथियों का क्रोध दाऊद पर आज उमड़ पड़ा। Usually it happens like that. सामान्य तौर पर इस प्रकार से हो जाता है। You take out your anger on somebody आप who is अपने leading you. क्रोध को किसी और के ऊपर उतारते जो आपकी अगुवाई कर रहा है। You forget all the benefits. आप उन तमाम लाभों को भूल जाते। But David, परंतु दाऊद instead of getting discouraged, इसके बजाय कि वो निराश हो, he strengthened himself in the Lord. लिखा है उसने यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। Amen. आमीन। It is God whose our help comes from the Lord. हमारा सहायता परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। Sometime in life God will teach us a lesson. कभी कभी परमेश्वर हमें जीवन में कुछ सबक सिखाता है। When we begin to trust our friends, our relations, जब हम and people, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों और लोगों पर भरोसा करने लगते हैं, God teaches us. परमेश्वर वहां भी हमें कुछ सिखाता है Don't look at man. कि मनुष्य की तरफ मदद के लिए मत दे, His breath is in his nostrils. क्योंकि उस मनुष्य की श्वास उसके केवल नथनों में है। He goes away and he's no more. उसकी सांस खत्म होती है और वो मनुष्य नहीं रहता। Only our help comes from God. हमारी सहायता केवल परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। So in the time of distress, इसलिए ऐसे निराशा के समय में, when everything is gone from your hands, जब आपके हाथ से सब कुछ जो था कभी निकल गया, where to go? कहां जाएं? Go to the Lord in prayer. प्रार्थना में परमेश्वर के पास लौटें। Today people are committing suicide. आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं। It is because they do not have any person to share their heart with. वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मित्र नहीं जिससे वो अपने दिल की बात बांट सके। Jesus is our good friend. यीशु मसीह हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। Hallelujah. Hallelujah. He's closer than your brother. वो हमारे भाई से भी ज्यादा करीब ये दोस्त It रहता is है। closer than your husband. एक पति से भी ज्यादा करीब ये दोस्त है। He's closer than your wife. वो आपकी पत्नी से भी ज्यादा करीब ये दोस्त You है। will experience it sometime. आप किसी समय इस बात का अनुभव करते More हैं। than father and mother. माता पिता से भी बढ़कर, More than brother and sister. भाई बहनों से बढ़कर, We have a friend in Jesus यीशु मसीह में हम एक ऐसे मित्र को पाते हैं with whom we can share all our sorrows. जिसके सामने अपने दिल की सब बात हम उंडेल सकते We हैं। can talk to him if nobody is there to talk to. हम उससे बात कर सकते हैं जब कोई भी बात करने वहां ना हो। So don't miss your time of prayer. इसलिए प्रार्थना के अपने वक्त को ना खोएं। In distress, don't go into depression. निराशा जब जीवन में आती है वहां बैठकर उदास मत हो जाएं, Take it to the Lord in prayer. परंतु उठकर जाएं, प्रार्थना में प्रभु के सामने डाल दें। God could have prevented this to happen, परमेश्वर इस बात को होने से रोक सकता था, but there is something good that is going to come out. परंतु उसे मालूम था इसके बाद कुछ और बेहतरीन निकल कर आने वाला है। So don't complain about your problem, your situation. इसलिए आज की अपनी परिस्थिति और आज की अपनी शिकायतों को लेकर आप परेशान ना हो। Look what God has for you beyond. परमेश्वर भविष्य में इसको लेकर जो करने वाला है, धन्यवाद दें उसको। Amen. हालेलुया। You say to your soul, आप अपने प्राण को कहें, look in the mirror and say, दर्पण में अपने आप को देख के बोले, why are you cast down, O my soul? हे मेरे प्राण, तू क्यों उदास है? Hope thou in God. यहोवा
पर भरोसा रख। My expectation is from Him. मेरी अपेक्षा उससे है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Say to yourself, अपने आप से बोले, the Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है, I shall not want. मुझे कोई घटी नहीं होगी। Hallelujah. Hallelujah. This morning I like to talk to you. आज सुबह मैं आपके साथ में कुछ बात करना The चाहता great हूँ। rescue operations वो in the सबसे scripture. पवित्र शास्त्र में जबरदस्त छुटकारे का वो कार्य। Hallelujah. Hallelujah. So David strengthens himself दाऊद ने अपने आप को यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा and he calls for the priest. और वो बुलाता है याजक को। He says, inquire of the Lord कहता है परमेश्वर यहोवा से पूछ whether I should go or not go. जो अमालेकियों के पीछे मैं जाऊं या ना जाऊं। There is no information. वहां कोई उनके पास सूचना नहीं है, There is no direction. उनके पास में कोई दिशा नहीं है। Maybe your situation is like this. शायद आज सुबह आप में किसी की परिस्थिति ऐसे ही है, There is no information. आपके पास में किसी घटना की कोई जानकारी नहीं, Where your family is. परिवार की कोई जानकारी Your नहीं, children have gone. बच्चे गए हैं जानकारी You have no नहीं, information. आपके पास में कोई सूचना नहीं, You have no direction. आपके पास में भविष्य की दिशा नहीं, Which way to go? किस तरफ जाऊं? Should I report to the police? क्या मैं पुलिस के पास जाकर बताऊं? Should I go to some collector? क्या मैं कलेक्टर के पास जाकर बताऊं? What should I do? मैं क्या करूं? I have no direction in my life. मेरे पास जीवन में कोई दिशा नहीं है। But if God says go, परंतु यदि परमेश्वर तुझसे कहता है जा, then take out your journey. अपने कदम को शुरू कर। Hallelujah. Hallelujah. You don't know where. तू जानता नहीं कहां, But God says, परंतु परमेश्वर कहता है pursue them. उनका पीछा कर, Pursue them. पीछा कर। Which way? किस तरफ प्रभु? We don't know. हम जानते God has नहीं, not spoken. परमेश्वर ने बताया नहीं, But you take a step of faith. परंतु विश्वास से एक दिशा में बढ़। Hallelujah. Hallelujah. You take a step of faith. विश्वास का कदम उठा, There is some information lying there. क्योंकि थोड़ी ही दूर में वहां पर सूचना है। Hallelujah. 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 Amen. You just sit down there and say, well, I'm done. यदि आप वहां पर बैठ जाएं, रोते हुए कहें मैं बर्बाद हो गया, Then you lost everything. तब आप सब कुछ खो देंगे। Amen. Amen. But if God says, परंतु यदि परमेश्वर बोलता है get up, वहां से उठ, go. जा, So David and his men दाऊद और start the उसके journey. साथ के पुरुष लोग अपनी यात्रा शुरू किए। They find one guy lying on the ground. और उनको रास्ते में एक आदमी पड़ा हुआ मिला। They try to talk to him, he can't. उन्होंने उस जवान को बात करना चाहिए, परंतु वो बहुत दुर्बल था, He's sick, बीमार था, hungry. भूख से तड़प रहा था। So what they did was, उन्होंने क्या किया? they said, maybe this is the sign. उन्होंने कहा शायद यही हमारे लिए चिन्ह है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Don't say, look for a big signboard. एक बहुत बड़े दिशा सूचक के लिए मत रुके, Small signs. छोटे छोटे दिशा मिलेगी। Meaning God has begun his work. मतलब परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Listen. सुनिए, So they feed him इन लोगों ने उस बीमार आदमी को कुछ खाने को दिया and give him water to drink. और बर्तन से पानी उसको पीने को दिया। When he recovered, और जब ये आदमी के अंदर कुछ बल आया, he had the information. उसके पास में दुश्मनों की सूचना पूरी थी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Sometimes you got to wait. कभी कभी आपको रुकना पड़ता है, Sometimes you have to exercise your faith. कभी कभी आपको अपने विश्वास को थाम के रखना पड़ता For getting है, information which way to go. सूचना पाने के लिए कि मैं अगला कदम क्या उठाऊं। And they said to this man, who are उन्होंने you? इस आदमी से पूछा तू कौन है? He says, I was in that campaign. उसने कहा मैं मिस्री जवान हूं, अमालेकियों के दल में था, But when I fell sick, परंतु मैं बीमार पड़ गया। he said, we burnt Ziklag. उन्होंने उस जवान ने बताया हम अभी सिकलग में आग लगा के निकले थे। And he says, listen, कहता है सुनो, I'll tell you all. मैं तुमको सब बताऊंगा, Spare my life. मेरी जिंदगी को बख्श देना, Don't hand me over to my master. मेरे को फिर से मेरे पुराने मालिकों के हाथ में मत सौंपना। So they said, yes. दाऊद और उसके लोगों ने कहा ठीक है। 200 men couldn't carry on with David. और 200 लोग 400 में दाऊद के साथ आने से इनकार कर दिए थे। They said, we're too weary, we can't. उन्होंने कहा हम बहुत थक गए हैं, हम तेरे साथ लड़ने नहीं जा सकते। The rest went. और बाकी 200, केवल 200 ही दाऊद के साथ आए।
So what happened? क्या हुआ? When they come there, जब वे वहां पहुंचे, they saw that they are all rejoicing in the victory. उन्होंने दूर से देखा अमालेक की छावनी डालकर अपने बड़े उस जीत में आनंद मना रहे हैं। Some people might rejoice with your property and with your money. दुनिया में लोग आपकी संपत्ति और आपके सामग्री को लेकर चुराकर वे लोग मौज करते आपको दिखेंगे। They are resting in the house where you should be resting. वे उस जगह विश्राम कर रहे हैं जहां पर आपको विश्राम करना था। And you begin to think, और आप सोचने लगते हैं, oh, where am I? मैं आज कहां हूं? You are in the right place, brother. भाई आप सही जगह में हैं। You are with God. परमेश्वर आपके संग है, आप उसके साथ हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If God be for us, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, who can be against us? फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? लिखा है, And David and his men saw them dancing. दाऊद और उसके जवानों ने इन अमालेकियों को नाचते हुए देखा। They're feasting. वे लोग तो भोजन कर रहे, Good aroma is coming. और वहां से खाने पीने की खुशबू आ रही। That's the time तभी ऐसे वक्त में God gave them opportunity. परमेश्वर ने उनको सही समय दिया। God gave them the power. परमेश्वर ने उनको सही बल दिया। God gave them the strategy. परमेश्वर ने उनको सही रणनीति बताई। And they went and smote them. और वे लोग जाकर उन पर टूट पड़े। Not one of David's men died. दाऊद के लोगों में से एक भी जन नहीं मरा। Bible says बाइबल कहती 400 young men escaped. उस विशाल भीड़ में से केवल 400 लोग दुश्मन के बचकर भाग पाए, Rest were all subdued and killed. और बाकी सारों को दाऊद और उसके लोगों ने मार दिया। You know what the Bible says? आप जानते बाइबल क्या कहती? God had told him, परमेश्वर ने उससे कहा था, you go, you will recover all. तू जा और तू निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। Amen. आमीन। That was the word of God. ये परमेश्वर की ओर से वचन आया था। Because in the 30th chapter, 30 अध्याय में 8th verse we will read. 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, David inquired at the hand of the Lord, saying, shall I pursue after the troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। See, David had 600 men. देखिए, दाऊद के पास 600 साथी जन थे, 200 minus, 200 उसमें से पीछे रह गए थे, meaning only 400 went. यानी कि केवल 400 उसके संग गए थे। If God has spoken that you will recover all, यदि परमेश्वर ने ये कहा है तू सब कुछ निसंदेह छुड़ा लाएगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Something I was praying for. मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था, Too much, it was troubling my mind for some time. कुछ समय से वो मुझको विचलित कर रही थी। And I picked up the Bible. मैंने बाइबल को उठाया, And the verse I got was, और जो वचन मुझको मिला, my thoughts are not your thoughts. परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे विचार के समान तेरे विचार नहीं है। Hallelujah. Neither are your ways like my ways. ना तेरे मार्ग मेरे मार्गों के समान है। God will make a way परमेश्वर मार्ग बनाता है where there is no way. ऐसी जगह जहां मार्ग है ही नहीं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If God has spoken, यदि परमेश्वर की आवाज आई है, but things don't look right, परंतु चीजें तो ठीक नहीं दिख रही। God spoke, you will recover all, परमेश्वर का वचन आया, तू सब कुछ को छुड़ा लाएगा, but there is no information, परंतु जाने की कोई सूचना नहीं, there is no direction, दिशा नहीं, and the 200 people have backed out. और 200 उसके साथ ही उसके बाद साथ छोड़ दिए।
Only with 400? केवल बचे 400 के साथ में वो If जा रहा। God has spoken यदि परमेश्वर की वाणी आई है that 400 is enough. तो वो 400 उन हजारों के लिए काफी है। Mind you, they were all weary with the journey. ध्यान रहे, दाऊद और उसके साथी बहुत थक कर लौटे थे अपनी यात्रा से। They were depressed. वे लोग निराश भी हो गए ऊपर से। There was no spirit to fight. उनके अंदर अब लड़ाई करने का कोई मानसिकता नहीं The था। only thing that held them एक ही चीज जिसको वो लोग थाम के आगे बढ़े थे is the word. वो था वो जो वचन आया था। Hallelujah. हालेलुया। When things shake you वो जब परिस्थिति आपको हिला देती है and you do not know where to go, और आप जानते नहीं मैं कहां मुड़ूं, you do not know what to pray, आप जानते नहीं मैं क्या प्रार्थना you do not करूं, know what to sing. आपको पता नहीं मैं क्या गाऊं। Hallelujah. Hallelujah. God is there. परमेश्वर वहां है। Hallelujah. हालेलुया। Stick to the word. उस वचन के साथ बने रहे। If God has said, यदि परमेश्वर ने कहा है you will recover all. तो तू सब कुछ छुड़ा निस्संदेह लाएगा। Your wife, your children, तेरे पत्नी, बच्चे, your money, तेरा धन, your property, तेरी संपत्ति, everything is coming back. हर चीज जो गई है वापस आ रही है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You say you lost court case. आप कहते मैंने कोर्ट केस हार गया। It won't come through court. वो कोर्ट के माध्यम से तुझे नहीं आने वाला। It comes with a God way. God will make a way. परमेश्वर जो मार्ग बनाएगा उस मार्ग से आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Bible says बाइबल बोलती David recovered all. दाऊद सब का सब लौटा लाया। All that the Amalekites had carried away. अमालेकियों ने जो कुछ वे ले गए थे David rescued his 2 wives. दाऊद ने अपनी दोनों पत्नियों को भी ले आया। 9th verse. 19th. 19 आयत में There was nothing lacking to them. उनमें से कोई भी वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो। Ah, आमेन। hallelujah. हालेलुया। Your purse, आपका पर्स भी कोई ले गया था, your card, कोई कार्ड उठा लिया था, everything. हर चीज वापस मिली। Amen. आमेन। Your passport, आपका पासपोर्ट कोई उठा ले गया। hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। Send your angel, he will get it done. ओ स्वर्गदूत को भेजें, वो काम को करके लौट के लाएगा। He's done it before. उसने पहले भी किया है। Nothing lacking, कोई भी कमी नहीं रही, small or great. क्या छोटा क्या बड़ा, Neither sons nor daughters. क्या बेटे क्या बेटियां, Neither spoil or anything क्या लूट का माल, that they had taken them. सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे। David recovered all. क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। Hallelujah. हालेलुया। We like to read a lot of accounts of rescues. हम पढ़ना चाहते हैं कैसे लोगों को बड़े संकट से निकाला गया है। ऐसे ऐसे घटनाओं को हम पढ़ना चाहते There हैं। is something in man which wants to help somebody else. इंसान के अंदर कुछ है जो दूसरे इंसान को जो संकट में है उबार कर लाना चाहता है। Sometimes these people would put their own life in stake to rescue someone. कभी कभी इन जवानों में से कुछ तो अपनी ही जिंदगी को दांव में तक लगा देते किसी और की जान को बचा के निकालने के It लिए। may be individuals or it may be group of people. हो सकता है किसी एक व्यक्ति को बचाने या समूह को बचाने To के लिए, save them from their enemy and from their circumstance. उनके शत्रुओं से या उनकी परिस्थितियों से उनको निकालने के लिए दांव लगा देते हैं। They risk their own lives. अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। Any rescue mission needs something very important. कोई भी ऐसा रेस्क्यू मिशन को There are certain important things they need to do. कुछ महत्वपूर्ण काम है जो उनको करना पड़ता है। Amen. आमेन। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. Number 1, पहली चीज, we must have the right information. जाने से पहले हमारे पास सही सूचना होनी चाहिए। Without information, where are we going? बिना सूचना के हम जा कहां रहे हैं? Who are we rescuing? हम किसको बचाने जा रहे हैं? What is the condition? उसकी दशा क्या है? We must know that. हमें ये जानना चाहिए। You see, I am coming to a spiritual point also. देखिए, मैं आत्मिक बिंदु में इससे आ रहा हूं। We must have the right information. How many souls are saved? कितने लोगों को बचाना है हमें मालूम होना What is चाहिए। the population of a city? किसी नगर जिसको बचाने जा रहे हैं उसकी जनसंख्या कितनी है?
Right information will help us. हमारे पास सही सूचना मददगार होगी। We must know the location. हमें उसका स्थान मालूम होना चाहिए, कहां वो स्थित है, What is the rescue like? और बचाव कार्य किस प्रकार का होगा। Is it flood? क्या बाढ़ से किसी को बचाना है? Is it water? पानी के अंदर से किसी को निकालना है? Is it air? क्या हवा में किसी को बचाना है? Is it land? क्या जमीन के अंदर से किसी को बाहर निकालना है? Is it a country? क्या किसी देश में फंसे हुए आदमी को निकालना है? Or is it a city or a village? या किसी गांव या किसी शहर के अंदर फंसा हुआ एक आदमी को निकालना The है? location is very important. इसलिए वह स्थान की स्थिति महत्वपूर्ण है। If they, you know, a few days back, a lot of people are getting stuck in the ropeways. आप जान रहे, पिछले कुछ दिनों में बहुत से लोग रोपवे में फंस गए थे, And people risked their lives. और दूसरे लोगों ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाली। And how they took them out from there. और कैसे उन फंसे हुओं को बचा के निकाला। There has to be a strategy. एक रणनीति कार्यक्रम की होनी चाहिए, There has to be a plan योजना होनी चाहिए to how to do it. कि कैसे हम इस काम को करेंगे। Fourthly, चौथी बात, there has to be a team आपके साथ काम करने वालों का एक टीम होना चाहिए, to execute the plan. जो झुंड उस काम को क्रियान्वित करे। To execute the plan, you must have a man. उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए आपके पास में व्यक्ति चाहिए। And also remember, और साथ ही याद रखें, for every rescue operation, हर एक ऐसे बचाव ऑपरेशन जो होते हैं, time is a big factor. उसमें समय एक बहुत ही अहम चीज है। Amen. Amen. You can kill the man. आप उस आदमी को मरने दे दोगे। You remember याद है when some Israelis were hijacked. जब कुछ इस्राएली नागरिकों को हाईजैक कर लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था, They were taken to Uganda. और उनको हवाई जहाज से युगांडा देश ले जाया They गया। left the other citizens of other countries. एक एक करके उन्होंने दूसरे देश के जो यात्री थे उनको एक एक करके छोड़ दिया। And only the Jews were kept. केवल यहूदी लोगों को उन्होंने जाने नहीं दिया, उनको बंधुआई में बांध लिया। And the terrorists said, one by one we're going to kill them. और आतंकवादियों ने सब जगह ये घोषणा करी, एक एक करके हम इन सबों को मारेंगे। Idi Amin was ruling. और उस समय इदी अमीन वहां का राष्ट्रपति था। So they had a strategy. और यहां पर दूसरे लोगों ने योजना बनाई। Some old friends of Idi Amin who were in the British army, they began to talk. और इदी अमीन के कुछ पुराने साथी जो साथ में युद्ध क्षेत्र में सीखे थे, वे उससे बातचीत करने लगे। They thought there is going to be a political solution. और उनको ऐसा लगा कि कुछ राजनीतिक हल बातचीत से निकलेगी। But there was another. परंतु एक और योजना बन रही थी। And that plan और वो योजना was थी to go into Uganda, कि हवाई जहाज से छुपकर उस देश के अंदर पहुंचना, bring them back. और अपने लोगों को बचा के वापस लेकर आना। Going into another country, किसी दूसरे देश की सीमा पार करके उसके अंदर जाना, flying over some other countries. दूसरे देश के ऊपर से उड़ान भरना। How will they do that? कैसा वो संभव है? You know, they planned in such a way. आप जानते, लेकिन उन लोगों ने ऐसी योजना बनाई। In 70 minutes, और 70 मिनट में they took them all out. उन्होंने सारे इस्राएलियों को वहां से बचा के निकाला। You go to the YouTube, you will find that. आप YouTube में आप उसको देख सकते हैं, उस घटना को। 70 minutes at NTB. एनटीबी में 70 मिनट Airport. नाम का एयरपोर्ट का नाम है एनटीबी। They rescued them. उन्होंने सब यहूदियों को निकाला। Hallelujah. हालेलुया। Risked their own lives अपनी जिंदगी को भारी खतरे में डाला, to rescue others. दूसरे अपने ही भाई बहनों को बचाने के लिए। There are numerous successful rescue operations all over the world. दुनिया भर में ऐसे बहुत से बचाव ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए गए हैं। People have rescued people from the enemy's hand, enemy territory. दुश्मन के क्षेत्र से लोगों ने अपने लोगों को बचाया है। They have rescued them from kidnappers. अपहरणकर्ताओं के हाथ से किसी को बचाया है। They have rescued them from mountains and from rivers, and पहाड़ों from से, caves. नदियों से, गुफाओं से उन्होंने लोगों को बचा के They have निकाला है। rescued them from wild animals. जंगली जानवरों से किसी को बचा के They निकाला have rescued them from wells. और कुएं के अंदर से बचाया है। They have rescued them from ropeways. और रोपवे में से लोगों को जो फंसे थे बचाया है। Not only people, ना केवल लोगों को, they have rescued living creatures and other animals also. जानवरों को, प्राणियों को भी उन्होंने जो संकट में फंस गए थे बचाया है। With always a rescue, there is a man.
हमेशा जहां कहीं भी किसी का बचाव होता है वहां कोई मनुष्य ही काम करता You है। remember something? आपको याद आ रहा है कुछ? God is in the mission of rescuing souls. परमेश्वर आज आत्माओं को बचाने के काम में है। Amen. आमीन। From Satan, शैतान से, from sin, पाप से, from all the sicknesses and disease. बीमारियों और रोग जो दुनिया में है उससे वो बचाने का काम कर रहा है। God needs a man. परमेश्वर को उस काम को कराने के लिए एक आदमी चाहिए। Sometimes we say God is not doing it, कभी कभी हम बोलते परमेश्वर नहीं कर रहा है, but actually He has given us the power to do it. लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दी है उस काम को करने की। I sought for a man परमेश्वर कहता मैंने एक मनुष्य को ढूंढा who would stand between the gap जो उस बीच के खाली जगह में आकर खड़ा हो जाए and make up the hedge. और बाड़े को सुधारे जो टूट गई है। Then it goes on to say, तब वो आगे बोलता है there was no man, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। so my own hand brought salvation. परमेश्वर कहता तब मैंने अपने ही भुजबल से उनको बचाया है। To accomplish anything on this earth, इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी कार्य संपादित करने के लिए God needs a person, परमेश्वर को एक मनुष्य की जरूरत है, a medium through which He can work. जिस माध्यम से वो काम कर सके। And He says, और वो कहता है I give you power, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता, I give you authority मैं तुम्हें अधिकार देता over all the works of the devil. शैतान के सारे अधिकारों के ऊपर। Go into all the world, इसलिए तुम सारे जगत में जाओ, preach the gospel. सुसमाचार का प्रचार करो। What is this gospel? ये सुसमाचार क्या है? This is a tool for rescuing people. ये आत्माओं को बचाने का उपकरण है। Amen. Hallelujah. When you preach the gospel, जैसे ही आप शुभ संदेश बोलते हैं it breaks darkness. वो अंधकार को तोड़ने का काम करती It is है, the power of God. क्योंकि वो सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। That's why the devil doesn't want us to preach the gospel. इसलिए शैतान नहीं चाहता कि अब हम सुसमाचार प्रचार करें। Every convention soul will be saved. हर कन्वेंशन में आत्माएं बसती हैं। Any preacher might come. चाहे कोई भी प्रचारक आए, Word will take place. वचन अपना काम करता है। Hallelujah. Hallelujah. That's why the devil doesn't want us to speak. इसलिए शैतान नहीं चाहता कि हम वचन का प्रचार So करें। the rescue mission is in a hand. इसलिए रेस्क्यू करने का काम हमारे हाथ में है। Amen. आमेन। If we hold peace, यदि हम अपने मुंह को बंद रखें, people will perish. लोग वहां पर मरते जाएंगे। It is so urgent. इतना गंभीर है। And you are the man. और बचाने वाले व्यक्ति आप हैं। Hello. Amen. You got to tell somebody. आपको जाकर किसी को बताना है। Jesus saves. यीशु बचाता है। Hallelujah. आमेन। The tool for rescue. बचाने का जो उपकरण है It's got everything in it. उसके अंदर सब कुछ है। You need power, there is power. आपको सामर्थ चाहिए, सुसमाचार में सामर्थ है। You want a crane, it has got a crane. आपको Lift up. उठाने के लिए कोई चीज चाहिए, उसमें वो भी है। You move something, it has got that power. किसी चीज को धक्का देने के लिए उपकरण चाहिए, उसमें वो भी है। Everything in one. सब कुछ एक ही के अंदर समाहित है। And this gospel और ये शुभ संदेश has rescued a million souls. आज के दिन दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को बचाया है। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You know, आप जानते हैं we have only one picture of Abraham, हमारे पास अब्राहम का केवल एक ही दृश्य रहता है an old man. कि एक बूढ़ा आदमी अब्राहम नाम का। He's not born old. लेकिन अब्राहम बूढ़ा नहीं पैदा हुआ, You see, he is a young man. वो भी छोटा था, वो भी जवान था। He had a team of fighters. उसके पास में लड़ाकू लोगों का एक समूह था। When the five kings attacked Sodom and Gomorrah, जब 5 राजाओं ने सदोम और गुमोरा पे हमला किया था, they took everybody captive. वे सबको बंधुआई में बांध के ले गए। And in that, और उसमें Lot, his cousin, brother, whatever, he also went. और लूत जो उसका भतीजा था वो भी उसके साथ चला गया। Someone came to Abraham and said, किसी ने आकर अब्राहम को ये सूचना दी,
They have attacked Sodom and Gomorrah. Your nephew is also gone. 5 राजाओं ने हमला किया और तेरा जो भतीजा वो भी चला गया। Their children have gone, their property is gone, their उनके money is gone. बच्चे, संपत्ति, पैसा सब लेके वो राजा लोग चले गए। Abraham didn't say, अब अब्राहम ने ये नहीं बोला I'll pray about that one. मैं इसके बारे में दुआ करके देखता हूं। There is a time to pray, प्रार्थना करने का एक समय है, there is a time to act. परंतु कार्य करने का एक समय है। Amen. आमेन। When you have to wash the utensils, जब बर्तन धोने का घर में समय है, don't say hallelujah, to stuti. I'm in prayer now. उस समय प्रार्थना और हालेलुया स्तुति के भाव में जाने का नहीं है। Do the job. उस समय कार्य करना है। Amen. आमेन। Some prayer becomes very big, nice excuse. कभी कभी प्रार्थना एक बड़ा अच्छा बहाना भी बन जाती है। Only prayer will not save people. केवल प्रार्थना करके बैठने से बाहर आत्माएं नहीं बचेंगी। Gospel has to go. सुसमाचार को जाना है। Somebody must speak to somebody. किसी को चाहिए कि उठकर जाए और किसी से कहे। Prayer will back it. प्रार्थना पीछे से उसका बड़ा बल रहेगा। So what did Abraham do? अब्राहम ने तब क्या किया? You say no, Abraham never fought. He's a nice fellow. ओ आप कहेंगे मैं तो कभी जिंदगी में लड़ाई किया नहीं हूं। No, just read this portion. इस भाग को पढ़ें। Genesis 14 chapter, उत्पत्ति के 14 में ये घटना लिखी है 14th verse. और उसकी 14 आयत। When Abraham heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house, 318, pursued them unto Dan. यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। Huh? What is this? ये क्या है? Trained servants. प्रशिक्षित दास। They knew how to use a sword. वो युद्ध कौशल में निपुण दास। They knew to block, hit. और उनको बचाव करना, हमला करना मालूम था। Hey, only prayer, केवल प्रार्थना, only talking to God, केवल परमेश्वर से बात करना, that is spiritual. वो आत्मिक कार्य है। Defense, परंतु रक्षा करना, train your people. अपने लोगों को प्रशिक्षित करना। Now, I'm not saying you learn karate. Anyone comes to church, boom. मैं ये नहीं bang. कह रहा हूं कि आप कराटे सीखे, शारीरिक प्रशिक्षण नहीं। But anyway, that's a different topic. What I want to say is, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? Abraham trained his own servants. अब्राहम ने अपने दासों को शिक्षित किया था और युद्ध कौशल में निपुण किया था। They were trained soldiers. और प्रशिक्षित सैनिक थे वो। 318. 318। And also, और साथ में they had weapons to fight. उनके पास अस्त्र और शस्त्र दोनों थे। So what happened? क्या हुआ? He goes himself to fight. वो खुद उनके साथ में लड़ने गया। You know, some people are very good in delegating a responsibility to others. कुछ लोग दूसरों को काम सौंपने में काफी अच्छे हैं। This thing has become very dirty. ये चीज बहुत खराब हो गई है। तो जॉय पोंछ देना इसको. जॉय इसको पोंछ देना। And then he says, और फिर वो बोलता है boy, पोंछ देना. कि भाई तू उसको पोंछ देना। Everybody is throwing out somebody. यदि सब लोग कार्य को अलग अलग दूसरे पे ढाल दें, That's not an army man. वो सेना का काम नहीं है। When the British came here, जब ब्रिटिश सेना यहाँ आई, they got the troops from the mountains. उन्होंने पहाड़ी लोगों को अपने सेना में लिया। Kumaon regiment. कुमाऊं रेजिमेंट बनाया। Why? क्यों? Faithful to the end. वफादार लोग आखिरी सांस तक। Obeying orders. आदेश का ऐसा पालन कर। Fire. गोली चलाओ। शुरू। And if you tell us fire, यदि हमें कहा जाए गोली चलाओ, क्यों? क्यों चलाएं? कुछ हो गया. कुछ हो गया है। जब तक एक और पर ठक. तब तक खुद को ही लग जाए। They were one of the best. वे
कुमाऊं के लोग बेहतरीन में से एक थे, the Gorkhas. गोरखा रेजिमेंट। They saved so many lives. उन्होंने कितने जिंदगियों को बचाया है। Our Indian army is full of great fighters. हमारी भारतीय सेना में ऐसे योग्य और निपुण योद्धा से भरे हुए हैं। Thank God for our soldiers. प्रभु का हम धन्यवाद देते अपने देश के सैनिकों के लिए, Because they keep the borders, we are safe. क्योंकि वे लोग सीमाओं में कार्य करते हैं, इसलिए हम सुरक्षित We हैं। must pray for them. हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Abraham got these fellows ready. अब्राहम ने इन लोगों को तैयार किया। Listen. सुनिए, Then he had a strategy. उसके पास में एक रणनीति थी। 15th verse. 15 आयत में, And he divided himself against them. And he and his servants by night and smote them and pursued them unto Hobab. और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। And then 16th verse. 16 आयत, And he brought back all good and also brought again his brother Lot and his goods and the women also and the people. और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। What a ministry. क्या सेवकाई है। Why should I go? मैं क्यों जाऊं? That fellow left me and went. Let him suffer. वो तो मेरा साथ छोड़कर दूसरे देश रहने गया, अब वो दुख उठाए। See what I said? देखो मैंने क्या बोला What था, he sows, he reaps. जो बोते हैं वही काटते हैं। So let us be comfortable. इसलिए हम यहीं बैठे रहें आराम से? No. नहीं, Every soul is important. हर एक एक प्राण कीमती है। Amen. मैन Recovers all. सबको वापस लेकर आया। When you have time, you read the 30th chapter of 1 Samuel. पहला शमूएल का 30 Not now, अध्याय, don't read now. अभी नहीं, आप घर में जाकर उसे पढ़ें। You know, आप जानते हैं such a lot of spoil David brought दाऊद ने इतनी बड़ी मात्रा में वो धन लेकर आया that he kept distributing to his friends and still there was more. कि वो अपने दूसरे साथियों को भी वो भेंट पहुंचाता रहा, तो भी उसके पास बहुत हो गया। To whom is he giving? किसको वो दे रहा था? All those people who helped him in the wilderness. वो जो जंगल में वे लोग उसकी मदद किए थे, उन सबों के पास भेंटे भिजवाई। He made a list. उसने सूची बनाई, So many carts of gold to so many people. इतना सोना इतने लोगों को देना है। So many carts of gold. Not one or two things. एक gold मिल गया तो एक दो hallelujah. छोटा सा अंगूठी नहीं, हालेलुया। If 2 rings are there, hallelujah. If 5 rings are there, यदि 5 अंगूठी हाथ में उंगली में, स्तुति आराधना. स्तुति आराधना होती रहती है। No problem you wear, I'm not. आप पहने, कोई दिक्कत नहीं है। But what I want to say is, परंतु मैं क्या कह रहा हूँ, we think gold is too much. Those days they shifted in carts. और उन दिनों में तो बैल गाड़ियों में ढोकर यहाँ से वहाँ सोना ले जाते थे। Amen. Amen. India also there is a lot of gold. भारत के अंदर भी बड़ी मात्रा में सोना है। And I don't want to go into all that. अब उस दिशा में हम नहीं जा रहे। Listen, सुनिए, when God has blessed you, then remember your friends. जब परमेश्वर आपको आशीष दे तो अपने साथियों को जिन्होंने मदद किया याद करें। Amen. आमेन। Bible says, बाइबल कहती है in the last days, अंत के दिनों में people will be without natural affection. लोग स्वाभाविक लगाव रहित रहेंगे। I'm not emotional man, so I don't feel it. मैं तो कोई भक्त आदमी नहीं हूँ, इसलिए मुझे Emotional. भावनात्मक आदमी नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं लगता। You all can cry, I don't. आपको रोना आता है, आप रो, मुझे रोना नहीं You है। want to laugh, you laugh. आपको हंसी आ रही है, आप हंस लो, I don't bother. मुझे फिक्र नहीं है। You have to bother. आपको फिक्र करना है। Some people say, I don't care. कुछ लोग बोलते हैं, अरे मैं उसका ध्यान नहीं देता। When God says He cares for us, we must care for one another. जब परमेश्वर ये बोलता है कि मैं तेरा फिक्र करता हूं, तो हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे का फिक्र करें। What rescue? क्या ही बचाव कार्य। With every rescue operation, there is a reward. हर बचाव कार्य के बाद में वहां बड़ा प्रतिफल है, There is joy. वहां बड़ी खुशी है, Amen. Amen. There is satisfaction. वहां पर संतोष है। When they took out that child from the well, जब उन्होंने उस दिन उस बच्चे को जो कुएं में गिर गया था बाहर निकाला, even government has got
teams who fight disaster. शासन के पास भी ऐसे लोग हैं जो आपदा में के समय में लड़ते हैं। NDRF. एनडीआरएफ, It is composed of 16 battalion of people. और उसमें 16 बटालियन लोगों की तैयार है। Different segments they have taken from the security forces. और सिक्योरिटी फोर्स के ही अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को निकाल कर उसे तैयार किया They are गया। ready to rescue. ऐसे लोग कभी भी संकट में बचाने के लिए चले जाते। And you know how much trouble they took? आप जानते हैं इन्होंने कितना तकलीफ झेला, They risked their life. अपनी जिंदगी को भी वहां पर कहीं फंसा दी। Weeks they spent. सप्ताह चले गए, Lakhs of rupees. लाखों रुपए बहाए गए, And time. और समय चला गया, Time was ticking off. और समय जैसे कि हाथ से निकला जा रहा A था। child could die. वो बच्चा किसी भी पल वहीं मर सकता था। Their joy लेकिन उनकी खुशी तब when they pulled him out. जब वो बालक जिंदा बाहर निकला। Hallelujah. हालेलुया। Friends, दोस्तों, when one soul is saved, जब एक आत्मा कहीं बचती है, there is rejoicing in heaven. वहां पर स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। God has called us on a mission to rescue people. परमेश्वर ने हमको एक कार्य में भेजा है, हम लोगों को उद्धार के काम देकर बचाएं। When God had to take out Israelites from Egypt, परमेश्वर को इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से जब बाहर निकालना था, He raised up a man. उसने एक आदमी को तैयार किया। His name was Moses. उसका नाम था मूसा। He says, Moses, go and tell Pharaoh, कहा, मूसा अब तू जा और फिरौन राजा से बोल, let my people go. मेरे लोगों को जाने दे। Hallelujah. हालेलुया। They were slaves. वे लोग तो गुलाम थे। Amen. आमीन। But still God says, फिर भी प्रभु बोलता है, they are my people. ये गुलाम मेरे लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। 400 years will pass. 400 साल गुलामी के बीत चुके थे। Abraham, अब्राहम के साथ बाद से 400 years will pass. 400 साल गुजरे थे। I will visit these people again. प्रभु ने कहा था, मैं तेरे लोगों की सुधि लूंगा। He said to Moses, उसने मूसा से कहा, I have seen the tears of my people. मैंने अपने लोगों की आंसुओं को देखा I है, have seen the people who the taskmasters are using them. और मैंने उनकी बड़ी पीड़ा को, जो उनके मालिकों से उन्हें मिल रही है, उस पीड़ा को देखा। I heard the groanings. मैंने उनकी आहें भरनी और कराहों को सुना है। I have come down to deliver them. अब मैं नीचे उतर आया हूं उनको बचाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Another rescue. एक और बचाव काम, Whole nation is rescued. पूरा देश का बचाव काम है। God can do anything. परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। Glory Hallelujah. Lord. He can Hallelujah. divide the sea. वो समुद्र को उसको बांटना पड़े बांटेगा। He make the walls of Jericho to fall. यरीको की दीवार को वो गिरा देगा, That his people ताकि उसके लोग will be blessed. वो धन्य हो। Hallelujah. Hallelujah. And the scripture says, और वचन कहता with a है, mighty hand God delivered him. परमेश्वर ने एक बड़ी हुई भुजा से उनको बचा के निकाला। Amen. The sea divided. समुद्र भी उनके सामने दो भाग हुआ। Oh, hallelujah. Hallelujah. With his nostrils, the breath of his nostrils, परमेश्वर के नथनों की श्वास he से dried up the sea. वो समुद्र को भी सुखा डालता। And they sang a song. तब लोग एक गीत गाने लगे, How God has delivered them. परमेश्वर ने कैसा अद्भुत छुटकारा उनको दिया है। What a rescue. क्या गजब का बचाव है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Rescue operations are still there. ओ बचाव कार्य आज भी इस दुनिया में चल रहा है। God had a plan. परमेश्वर के पास में एक योजना थी। Satan had gripped people in his clutches. शैतान ने लोगों को अपने जंजाल में जकड़ के रखा था। In sin, पाप के उस जंजीर में, in sickness, बीमारी के उस बंधन में, all kinds, you name it. तरह तरह के परेशानियों में शैतान ने लोगों को बांध रखा था। Fight and violence and murder. कहीं लड़ाई, कहीं हिंसा, कहीं हत्या, Idolatry. और मूर्ति की उपासना, The thing which God hates. जिस चीज से परमेश्वर नफरत करता है। Today the society has become loose. आज समाज में बहुत हल्कापन आ गया। Chit chat and cheat. चिट चैट और चीट। Listen, सुनिए, God had a plan. परमेश्वर के पास इन सब के लिए एक योजना थी। For God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा। His strategy, उसकी रणनीति ये थी His only son, कि मेरा अपना इकलौता बेटा, He'll do the job. वो इस काम को पूरा करेगा। Hallelujah. You don't need 1,000 commandos. आपको हजारों कमांडो नहीं चाहिए, One is enough. एक काफी है। Somebody said, किसी ने बोला,
one-man army. एक आदमी वाली सेना। If God is with you, यदि परमेश्वर तेरे साथ है, who can be against you? फिर तेरा विरोधी कौन हो सकता है? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So he sent Jesus, परमेश्वर ने इसलिए यीशु मसीह को भेजा, and Jesus gave his manifesto, और यीशु मसीह ने अपने कार्यक्रम को बता दिया, his strategy, अपनी रणनीति बताई, what he's going to do. वो क्या करने वाला है। And he said like this, और उसने इस प्रकार से कहा, the Spirit of the Lord is upon me. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, He's anointed me to preach the उसने मेरा gospel to the poor. अभिषेक किया है कि कंगालों को सुसमाचार दूं। Hallelujah. हालेलुया। The Spirit of God परमेश्वर की आत्मा is there to save. बचाने वहां हाजिर है। He has sent me to heal the broken hearted. उसने टूटे मन वालों को बचाने मुझे भेजा है। What a manifesto. क्या कार्यक्रम है। Preach deliverance to the captives. बंधुओं को छुटकारे का सुसमाचार सुनाने। You know, thousands of young girls are in prostitution, trapped and deceived by people. हजारों की संख्या में बच्चियां वेश्यावृत्ति में ढकेली जाती हैं, अपहरण करके। No one to hear their voice, they cry, they pain. कोई उनकी आवाज, कोई उनकी पुकार और दर्द को नहीं सुनता। From where did deliverance come? उनके लिए छुटकारा कहां से आएगा? To preach deliverance to the captive. जो बंधन में हैं, उनके लिए छुटकारे का सुसमाचार है। Some innocent people are in mental houses, mental कुछ hospitals. निर्दोष लोग मानसिक अस्पताल में, पागल खानों में, They have been pushed into that. जबरदस्ती ढकेल के डाल दिया गया है। Some are innocent people are in jail. कुछ निर्दोष लोग जेल की सजा काट रहे हैं। They have no voice. उनके पास कोई आवाज नहीं है। Only the groanings God can know. अकेले में उनका कराना और रोना केवल परमेश्वर ही सुनता है। Friends, दोस्तों, Jesus is saying, यीशु कह रहा है, this is my mission, मैं इसीलिए आया हूं, to heal the broken heart, टूटे मन वालों को चंगा करने के लिए, to give sight to the blind. अंधों की आंखें खोलने, Oh, hallelujah. To set at liberty those who are in prison. जो कैद में हैं, उनको आजाद करने के लिए। And that mission He has given us in our hand. और वो कार्य उसने मेरे और आपके हाथ में सौंपा है। He has delivered us from so great a death. उसने भयंकर मौत से मुझको और आपको बचाया है। And He keeps on delivering us. और वो हमें बचाता रहता है। And He will yet deliver us. और वो हमें बचाता रहेगा। He who ascended on high descended on the lower parts of the earth. वो जो ऊंचे पर विराजमान था, निचले भागों तक हो गया And set the captives free. और बंधुओं को आजाद किया है। Hallelujah. हालेलुया। When Jesus died on the cross, and जब rose यीशु- again, जब यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, फिर जी उठा, graves were open. उसके साथ साथ दूसरी कब्रें भी खुल गई। Many saints appeared in the holy city. लिखा है, बहुत से पवित्र लोग जो पहले मर चुके थे, वे नगर में लोगों को दिखाई दिए। And He said to John, और यीशु ने यूहन्ना से कहा, I am He who lives. यूहन्ना, मैं वही हूं जो जीवित हूं, I was dead. मैं वही हूं जो मारा गया था, Now I am alive forevermore. और अब मैं सदा काल के लिए जिंदा हूं। I hold the keys of hell and death. नरक और मौत की कुंजियां मेरे हाथ में हैं। Set the people free. लोगों को आजाद करो। Jude writing says, यहूदा लिखते हुए बोलता है, 22 and 23, उसके 22 और 23 में, and some have compassion, making a difference, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments that are spotted by the flesh. उन पर जो शंका में है दया करो,
और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। Amen. Read it again in Hindi. उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। Pull them out. उनको झपट कर निकालो, We're going to get burnt in fire. उनको जो आग में जलने वाले हैं। I was reading of one story. मैं एक कहानी पढ़ रहा था। One girl always looked at her mother's hands and she was very ashamed that her hands were all sort of deformed. वो अपनी माँ को के हाथों को देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी, क्योंकि उसके माँ के जो हाथ थे बहुत ही बदसूरत और घावों से भरे जैसे थे। She'd always tell her, why don't you cover your hand? वो बेटी माँ से बोलती थी, माँ आप उसको हाथ को ढक के क्यों नहीं रखते हो। The mother never told her what had happened. माँ ने कभी उस हाथ के बारे में उसको कुछ नहीं बताया, But some relation of theirs told her the story. लेकिन उसके किसी रिश्तेदार ने उस बच्ची को कहानी बताई That when you were small, कि जब तुम बहुत छोटी थी the house was on fire. तुम्हारे घर में एक दिन आग लग गया। Mother risked her life. माँ अपने जान को खतरे में डाली And put a blanket over you and took you out from there. तेरे ऊपर जल्दी से कंबल डालकर तुझको जलते हुए घर से बाहर निकाला। She had covered herself, उसने अपने आप को तो ढक दिया था, but her hands were open. लेकिन हाथ उसके खुले हुए थे। From that day, और उस दिन के बाद से that girl realized, उस लड़की ने एहसास किया, those hands which I didn't like, ये हाथ जिसका रूप मुझे पसंद नहीं आता था, those are the hands that saved my life. वही हाथ थे जिसने मुझको जलते हुए आग से बचाया है। The scripture says, वचन कहती है, save them from fire. उनको आग से झपट कर बचाओ। Amen. Meaning, मतलब sometimes they will detest you, they won't like you. कभी कभी वो आपसे नफरत करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। And he said unto his disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा, go into all the world, सारे जगत में जाओ, preach the gospel to every creature. हर एक प्राणी को सुसमाचार सुनाओ। He that believeth and is baptized shall be saved. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उद्धार पाएगा, He that believeth not shall be damned. और जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। Rescue. बचाओ। Amen. We are on all in a very big rescue mission. हम सारे लोग जो यहाँ हैं, हम सब एक बहुत बड़े बचाव कार्य में शामिल हैं। God's desire is every man should be saved. परमेश्वर की इच्छा हमसे ये है कि सारे लोग बचाए जाएं। Songwriter says, एक गीत लिखने वाले ने लिखा है, rescue the perishing, नाश होने वालों को बचाओ, care for the dying, मरने वालों की फिक्र करो, snatch them in pity from sin and the grave, दया के साथ उनको मौत और कब्र से छुड़ा कर निकालो। weep over the erring one, गलती करने वाले को लेकर तुम रो, lift up the fallen. जो गिर गए हैं सहारा देवो, Jesus is merciful. क्योंकि यीशु भी दयालु है। Jesus will save. यीशु उनको बचा लेगा। Amen. आमीन। Down in the human heart, मानव हृदय के गहराई में crushed by the tempter, परीक्षा लेने वाले ने जिसे कुचला है, feelings lie buried that grace can restore. ऐसी भावनाएं दबी पड़ी हैं जिसे केवल अनुग्रह ही बाहर ला सकता है। Touched by a loving heart, एक प्रेमी हृदय के द्वारा जो स्पर्शित होता है, wakened by kindness, दया के द्वारा वो जो फिर से जिंदा होता है, cords that were broken वो तार जो बाजे के टूट गए थे will vibrate once more. एक बार फिर से झनझना उठेंगे। Rescue the perishing, नाश होने वालों को बचाओ, care for the dying,
फिक्र करो उनके लिए जो मर रहे हैं, snatch them in pity from sin and the grave. दया के साथ उनको पाप और कब्र से बाहर निकालो। Weep for the erring one. जो व्यक्ति गलती करता है उसके लिए तुम आंसू बहाओ। Lift up the fallen. गिरे हुए को सहारा देके खड़ा करो, Jesus is merciful. क्योंकि यीशु मसीह दयालु है। Jesus will save. यीशु ही बचाएगा। The responsibility वो जवाबदारी is on you, आपके ऊपर है, is on me. मेरे ऊपर है। Your neighbor, आपके पड़ोसी, your people. आपके लोग, Don't look at the outward. उनके बाहरी भाव को ना देखें, Don't look at the religion and caste and creed. उनके धर्म, उनके रंग, उनकी जाति को ना देखें, Look at the soul. उस व्यक्ति की कीमती आत्मा को देखें। Pray to God. परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ओ जीसस। Jesus looked at the multitude. He was moved with compassion. यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तरस से भर गया। It is for them he died. It is for you he died. उसी भीड़ के लिए उसने जान दी, आपके लिए, मेरे लिए उसने अपनी जान दी है, That our soul will not go to hell. ताकि हमारा जान अब नरक में ना जाए। What shall your prayer be? हमारी प्रार्थना आज क्या रहेगी? I am saved. It's all right. Why should I worry about others? मैं उद्धार पा चुका हूँ, मैं दूसरों के बारे में क्या सोचूं? No, friend. नहीं मित्रों, There are some people who are weeping still. कुछ लोग हैं कहीं पर अभी भी रो रहे हैं। Pray for a great deliverance from all these kind of Oh. clutches the children are in. परमेश्वर से प्रार्थना करें, ऐसे ऐसे स्थानों में जो कैद है, बंधुआई में जो बच्चे फंसे हुए हैं, वहां से वो निकल कर आजाद हो जाएं। I was listening to one tape मैं एक टेप सुन रहा था of the police department, पुलिस डिपार्टमेंट का, and in that the girl is crying out and saying, और उसमें एक लड़की रो रो के बोल रही है, "Oh my God, oh my God, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, somebody help me please. कोई- Please, at least let me go to sleep." कोई मेरी मदद करो, मुझको कम से कम सो जाने दो। Rescue. ऐसों को बचाओ। Even if our hands get burnt, हमारे हाथ उसमें जल सकते हैं, you save a soul from hell. लेकिन एक आत्मा को हम नरक जाने से भी बचा सकते हैं। Shall we pray? क्यों ना हम प्रार्थना करें। Jesus, धन्यवाद। We are living in peace. We are living in the presence of God and His people. हम शांति में रह रहे हैं, प्रभु के लोगों की उपस्थिति में समय काट रहे हैं। But there are others. परंतु ऐसे दूसरे लोग भी हैं, They look into the void and they have no hope. वे लोग ऐसे खालीपन की ओर देखते हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है। Your prayer, आपकी वो प्रार्थना let it touch the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन को आज सुबह छू ले। Jesus। To open prison doors and make the blind to see. ताकि प्रभु बंधुओं को आजाद करे, शकारा कैद बाबा, खाने में जो शाला है वो बाबा। स्वतंत्र हो जाए। Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Sharalala baba shikarala baba shikarala. Thank you, Jesus. The Spirit of the Lord, please come upon me to heal the broken heart and set the captives free, to
Open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord, please come on me. The Spirit of the Lord, please come upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord, please come on me. Ask you, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता मैं तुझसे मांगता हूँ, open our eyes हमारी आंखों को खोल दे, that we might see as you want us to see. ताकि हम वैसे देख सके जैसा तू चाहता हम देखें। Open our ears that we might hear what you want us to hear. हमारे कानों को खोल प्रभु, ताकि जो तू चाहता हम सुने, हम सुन सके। Open our hearts that we might feel like you felt. हमारे हृदय को खोल प्रभु, ताकि हम वैसा महसूस करें जैसा तू करता। These hands, these feet, हमारे हाथ, ये पाँव, this mouth ये मुंह become a helping hand for somebody. किसी के लिए सहारा और मदद का कारण बन जाए। Send your spirit. अपनी आत्मा को भेज, Break the strongholds of the enemy. दुश्मन के सारे दृढ़ गढ़ों को Set उठा the दे, captives free. बंधुओं को आजाद कर दे। You have given us the authority and the power. तूने हमको अधिकार और सामर्थ्य दिया है। As a church, we bind every power of hell and darkness. आज कलीसिया होने के नाते हम ऐसे सारे अंधकार की ताकतों को बांधते, They just gripped people and kidnapped them and made them captives. जो लोगों को बांधते अपहरण करते और उनको कैदी बनाते हैं। We speak deliverance to them, O God. हम आज यहाँ से उनके ऊपर छुटकारे को बोलते हैं। Be free in Jesus' name. यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। Escape. वहां से बच निकलो। Angels of God make the way of escape for them. परमेश्वर का दूत उनके लिए छुटकारे का रास्ता Open those prison doors. वो कैद खाने के दरवाजे खुल जाएं। Set those innocent children free. वो बच्चे, वो जो कैद में आजाद हो जाएं। Free, Jesus' name. Oh, the glory. Oh, the glory of your presence. Fill your temple. Give you reverence. Amen. Rise to your essence and be blessed by your presence as we glory in your embrace. As your presence now fills this place. Jesus' name. Father, पिताजी, thank you for all your word which has come to us. बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु, तेरा वचन आज सुबह हमारे लिए जो आया है। Make me like these men, O God,
who risk their own lives to rescue others. हमें इन लोगों के समान बना जो दूसरों को बचाने के लिए अपना जीवन खतरे में डालने तैयार थे। Give us a voice like Moses' voice. हमें मूसा के जैसी आवाज हमें दे। He could go and tell the monarch of Egypt, Yes. जो जाकर मिस्र के उस सम्राट खूंखार को बोल सके, let my people go. मेरे लोगों को जाने दे। Hallelujah. Oh Lord. Kuramasila Oh, kati yes. kaliata rababa. Yes. Give us the strength you gave to David. प्रभु वो बल हमें दे जो दाऊद को तूने दिया, We might recover all. ताकि हम अपने लोगों का सब कुछ छुड़ा लाएं। Not only blessing to others, we're blessing to our own self, but to others also. ना केवल अपने स्वयं की संपत्ति, अपने भाइयों का भी सब कुछ छुड़ा लाएं। Amen. Are you tired of chasing pretty rainbow? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all your shattered dreams around night. At the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all, oh, give them all to Jesus. Shattered dreams, broken toys, broken toys. Give them all, give them all, oh, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised us a heart full of living, and that's the very thing that once brought him. Give them all, give them all, give them All to Jesus. shattered dreams, wounded lives, broken toys. Give them all, Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Sing it again. Give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus. shattered dreams, wounded lives, broken toys. Give them all, Give them all, give them all, oh, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Yes, He will turn your sorrows into joy. Hallelujah. hallelujah, Amen. amen. Thank you all for your prayers for us. आपकी प्रार्थनाएं जो आप हमारे लिए करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, We thank you for supporting us also. और आर्थिक तौर से Financially. हमारी सहयोग करने के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। God bless you all. प्रभु आप सबों को उसके लिए आशीष दे। We are online because the churches are closed. और चूंकि कलीसियाएं अभी बंद हैं, हम ऑनलाइन ही इस प्रकार से आपसे रूबरू हो रहे हैं, We are praying that it will open soon. और यही हमारी प्रार्थना है कि प्रभु का भवन फिर से एक बार खुलने पाए, We can gather together and worship Him. ताकि लोग एकत्रित होकर उसकी आराधना मिलकर कर सके। So we sing a chorus, we put our offering. इस समय हम एक कोरस को गा लेंगे और आप अपनी भेंटों को अपने स्थान में एकत्रित कर सकते हैं।
really ought to be a sigh upon my heart. Don't judge yet, there's an unfinished part. I will be perfect just according to His plan, fashioned by the Master's loving hand. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on me. Shall we pray for the offering? आइए भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। Lord, we pray that you bless those who have given to your kingdom. प्रभु हम प्रार्थना करते तू अपने लोगों को आशीष दे जिन्होंने तेरे राज के प्रति दिया है। Those who could not give, bless them too. प्रभु जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष देना। We all together might love you and serve you all the days of our life. तेरे सारे लोग हम मिलकर जीवन भर तेरी सेवा कर सके। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. 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 God bless you all.